Good morning, students. In Advanced Java Programming, Unit number 6, Hibernate. In a previous session, we have discussed about OR mapping and what is a case architecture, right? Now, in this session, we will going to discuss about the Hibernate Query Language, HQL, right? So let's start. So, Hibernate Query Language, HQL. So, the Hibernate ORM framework, which is a object relational mapping framework, can provide its own query language, which is known as a Hibernate query language. So the Hibernate query language is a similar or a same as a SQL, but it does not depend on the table of a database. As we know that the structured query language can depend on a database of on a table of the database. So instead of a table name, we use the class name in a HQL, because whenever we want to store a data into a table, at that time we can pass a table name, and on that particular table name the SQL can store the data. But instead of that, in a Hibernate query language, the Hibernate query language can use a class name instead of a table name. That's why the Hibernate query language is a little bit different from a SQL. So therefore it is a database independent query language. So we can say that the structured query language is a database dependent, while the Hibernate HQL is a database independent query language. Some characteristics of the HQL is the first one is it is a similar to the SQL, right? So the HQL Hibernate query language syntax is a very similar to the standard SQL. If you are familiar with the SQL, then writing the HQL would be pretty easy, and that's the thing, you know, you all know very well, and you all are aware or familiar with the SQL, right? Second one is a fully object oriented, right? Because we know that the HQL can use a class name instead of a table name, and it doesn't use a real name of a table and a column. It use a class and it's a property name instead of a table and a column name. So that we can say that the Hibernate query language is a object oriented, right? And the HQL can also understand inheritance, polymorphism, and the association. As we have discussed a mapping type previously, three types of mapping, and in that we saw that कि जो हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज है वो इनहेरिटेंस पॉलीमॉर्फिज्म और एसोसिएशन जो है वो भी सपोर्ट करता है, उसको समझ लेता है कि यस कौन सा पर्टिकुलर डेटा कौन सा पर्टिकुलर क्लास किस से एक्सटेंड होके आया है, और कौन से पर्टिकुलर टेबल जो है, नॉट अ टेबल बट वी कैन से द क्लास, राइट, वो एक दूसरे से साथ किस तरह से एसोसिएटेड एंड एक्सेट्रा. सो इट इज अ फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. Third one, it can reduce the size of a queries, right? So instead of writing in a SQL, if we write the query into the HQL, then the size of the query is reduced. Next, differentiation between the HQL versus the SQL. If we write the select query in a SQL, then we can write like this. First, we create a result set object, and by using the statement object हम एग्जीक्यूट क्वेरी को फायर करेंगे और उसमें क्वेरी को पास करेंगे, विच इज अ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम द HJDI वेयर द HJDI इज अ टेबल नेम, राइट? सो इंस्टेड ऑफ SQL, HQL में हम किस तरह से लिखेंगे? HQL में हम लिखेंगे कि एक क्वेरी क्लास का क्वेरी ऑब्जेक्ट लेंगे, और जो हाइबरनेट का आर्किटेक्चर है उसमें से हम उसका सेशन ऑब्जेक्ट पिक करेंगे, और by using the session object we can fire a create query, and we can just write from HJDI. So here HJDI is a class, not a table. So if we write in a HQL,
we use a class name. If we write in a SQL, we use a table name. So varchos जो है वो अगर यूज करें तो सिलेक्ट के साथ किस तरह से होगा? सो अगर एसक्यूएल क्वेरी की बात करें तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम द एचजेडीआई वेयर द आईडी इज द 301, और एचक्यूएल में हम इसको किस तरह से लिखेंगे कि फ्रॉम द एचजेडीआई where the ID is equal to 301. We don't need to write a full query in a HQL, or that's why the characteristics of a HQL is it will reduce the size of query, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अपडेट क्वेरी किस तरह से लिखेंगे? तो यहाँ पे एसक्यूएल में हमें अगर अपडेट करना है तो हम कुछ इस तरह से अपडेट करेंगे। सबसे पहले तो क्वेरी पास करेंगे कि अपडेट द यूजर वेयर द यूजर इज अ टेबल नेम, set the name is equal to question mark where the id is equal to question mark. So for that we prepared a one prepared statement and हम उसको query पास करेंगे, और जो भी अपडेट करना है उसमें हम सबसे पहले तो एक सेट करेंगे स्ट्रिंग, जिसमें कॉलम नंबर 1 में हमें लिखना है HDIC, और इंटीजर जो है वो पास करना है सेकंड कॉलम में कि जो है 054, और उसके बाद हमें उसको अपडेट कर देंगे, राइट। तो एसक्यूएल में हम कुछ इस तरह से अपडेट की क्वेरी फायर करते हैं। तो एचक्यूएल में किस तरह से करेंगे? तो एचक्यूएल में हम क्या करेंगे, एक क्वेरी ऑब्जेक्ट लेंगे सेशन डॉट द क्रिएट क्वेरी, और इन बिटवीन हम लिखेंगे कि अपडेट द यूजर सेड नेम इज इक्वल टू एंड वेयर द आईडी इज इक्वल टू आई, कि जहां पे ये जो एंड है कि क्या सेट करना है, हमें नेम सेट करना है, क्या सेट करना है। सो यहाँ पे आपने हमने सेट पैरामीटर का यूज करके नीचे हमें दिखाया है कि q dot set the parameter n is equal to hjdic where the id is equal to 054 की जो i की वैल्यू है, और उसके बाद एक इंटीजर स्टेटस लेके हम उसको एक्सिक्यूट अपडेट कर देंगे। तो ऑटोमेटिकली आप एसक्यूएल और एचक्यूएल में देख सकते हो कि जहां अपडेट क्वेरी हम एसक्यूएल में 5 स्टेटमेंट से करते थे, एचक्यूएल में वो 4 स्टेटमेंट से हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर डिफरेंस जो है वो एकदम से क्लियर है। और इंसर्ट क्वेरी की अगर बात करें तो इंसर्ट इनटू अ स्टॉक वेयर द वैल्यू इज इक्वल टू 1000 एंड एबीसी, और उसको हम अपडेट कर देंगे एग्जीक्यूट अपडेट फायर करके। और एचक्यूएल में हम क्या करेंगे? तो एचक्यूएल में हम सेशन ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट क्वेरी करके इंसर्ट इनटू द स्टॉक क्या क्या, तो कि स्टॉक कोड और स्टॉक का नेम, राइट। उसके बाद क्या करेंगे कि सिलेक्ट द स्टॉक कोड स्टॉक नेम फ्रॉम द बैकअप अंडरस्कोर स्कोप। तो ये क्या हुआ यहाँ पे, तो कि हमें इंसर्ट करना है किसमें, तो कि स्टॉक नाम के क्लास में, कि जहाँ पे दो पैरामीटर्स है, एक स्टॉक का कोड और दूसरा है स्टॉक का नेम। उसके बाद सिलेक्ट क्या करना है, तो कि स्टॉक का कोड और स्टॉक का नेम सिलेक्ट करना है कहाँ से, तो कि नॉट अ टेबल बट अ क्लास का नेम, जिसका क्लास नेम है बैकअप अंडरस्कोर स्टॉक। तो जो क्लास बैकअप अंडरस्कोर स्टॉक है उसमें स्टॉक का कोड और स्टॉक का नेम नाम के जो दो वेरिएबल है उससे वो वैल्यू सिलेक्ट करके जो स्टॉक नाम का जो क्लास है उसमें वो उसको इंसर्ट करवा देगा, और फिर हम क्वेरी को एग्जीक्यूट करवा देंगे। तो ये हो गई इंसर्ट की क्वेरी इन एचक्यूएल। क्लियर? नाउ स्टेप्स टू रन द हाइबरनेट प्रोग्राम, राइट। So if we want to create or develop a Hibernate application, so for that, what we will do, the first thing is that to run the first Hibernate example with the MySQL in a NetBeans, right? What we will do, the step number 1 is a create a database. सबसे पहले SQL में जाके हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे, डेटाबेस का नाम दे दिया। उसके बाद सेकंड थिंग इज वी कैन क्रिएट अ टेबल। तो यहाँ पे जो टेबल क्रिएट करने की जो कोडिंग है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो स्टेप नंबर 2 में सबसे पहले हम टेबल क्रिएट करेंगे रिजल्ट नाम का, राइट। उसके बाद थर्ड स्टेप इज टू टेक वन न्यू जावा एप्लीकेशन, राइट। सो
न्यू प्रोजेक्ट, उसमें जावा, उसमें से जावा एप्लीकेशन और उसमें नेक्स्ट करके नेम दे देना है हाइबरनेट टेस्टिंग, जो एप्लीकेशन का नेम है। उसके बाद लास्ट में फिनिश करके हम प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे और उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले हाइबरनेट के अंदर जो है वो हमें पोजो क्लास इंप्लीमेंट करना है। तो पोजो क्या है? पोजो है वो है प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट। और वो किस तरह से होगा, थ्रू द कोडिंग हम इसको समझेंगे कि पोजो क्लास किस तरह से डिफाइन होगा। So we create this class to use the variable to map with the database column. SQL जब यूज करते थे एट दैट टाइम कॉलम का नेम और उसकी वैल्यू स्पेसिफाई करके हम मैपिंग करते थे वेरिएबल का। यहाँ पे into the Hibernate we can create a Pojo class which is used to map the variable to the column of a database. So for that, what we will do, on a right clicking on a package Hibernate test, and we can select a new Java class and we can write the name of that particular Java class as a customer, and we can create one class which is our Pojo class. So जो पोजो क्लास की जो कोडिंग है वो कुछ इस तरह से होगी। पैकेज क्लास का नेम हमने स्पेसिफाई किया था कस्टमर, उसके अंदर हम सबसे पहले तो एक स्ट्रिंग ले लेंगे कस्टमर का नेम कि जो कॉलम से मैपिंग होगा हमारा। तो एक कस्टमर नेम, उसके बाद कस्टमर आईडी और उसके बाद कस्टमर एड्रेस, कस्टमर का ईमेल। तो इतने सारे हमारे वेरिएबल्स हैं कि डेटाबेस के अंदर चार टेबल और उस चार कॉलम्स और चार कॉलम्स को मैप करने के लिए चार वेरिएबल। उसके बाद सबसे पहले हम एक मेथड डिफाइन करेंगे सेट द कस्टमर एड्रेस, और उसमें एक स्ट्रिंग पास कर देंगे कस्टमर एड्रेस से, और उसको हम पहले तो सेट करवा देंगे कि जब भी हम जावा एप्लीकेशन रन करेंगे और उसमें जैसे ही एड्रेस हमने स्पेसिफाई किया तो वो हमारा टेबल में जो एड्रेस नाम का कॉलम रहेगा उसके साथ वो मैप हो जाएगा। सो दिस डॉट कस्टमर एड्रेस इज इक्वल टू कस्टमर एड्रेस। सेम वे से कस्टमर का ईमेल आईडी हम सेट करेंगे, कस्टमर का सिंपल आईडी सेट करेंगे और उसके साथ साथ कस्टमर का नेम भी हम सेट कर देंगे बाय यूजिंग अ सेट मेथड। तो ये हमने मेथड डिफाइन कर दी फॉर द मैपिंग और फॉर अ सेटिंग द डेटा। उसके बाद अगर हमें फेच करना है, सो फॉर दैट वी कैन यूज अ गेट मेथड। फॉर द एड्रेस इट विल रिटर्न द कस्टमर एड्रेस, फॉर email it will return the customer email address, for a id it will return customer id, and for a customer name it will return। तो ये हो गया हमारा पोजो क्लास कि जिसमें हमने दो टाइप की मेथड यूज की थी। कौन सी, चलो देखते हैं। सो into the four step number 4 we have created a pojo class which is used to map the java variable with the database की जो कॉलम है उसके साथ। सो उसके लिए हमने जनरेट किए गेटर और सेटर कि जो हम इजीली जो है वो जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, राइट क्लिकिंग ऑन द कोड एंड सिलेक्ट इंसर्ट कोड, देन चूज अ गेटर और अ सेटर। तो हमें सिंपल से क्या करना है कि जो हमने कोड लिखा है सिंपल, वहां पे राइट क्लिक करके हम इंसर्ट कोड नाम का जो एक ऑप्शन आएगा उसमें जाएंगे और उसमें आएगा गेटर या तो सेटर। इट मीन्स कि हमें बाइंडिंग करना है कि वेदर दैट पर्टिकुलर मेथड इज यूज्ड एज अ सेटर मेथड और अ गेटर मेथड। अगर गेटर मेथड है तो डेटाबेस से फेच करके वेरिएबल में मैप करेगा, और वो सेटर मेथड है तो वेरिएबल से डेटाबेस कॉलम में। So the variable customer name will map with the name column of a customer table। सेम वे से कस्टमर आईडी जो है वो सी अंडरस्कोर आईडी जो कॉलम होगी डेटाबेस की उसके साथ वो मैप होगी, एंड इट इज अ इंटीजर एंड ऑटो इंक्रीमेंटेड, सो द पोजो क्लास वेरिएबल आल्सो शुड बी इंटीजर। ये खास ध्यान रखना कि अगर आईडी आपका इंटीजर है तो पोजो क्लास के अंदर जो आप वेरिएबल डिफाइन करते हो वो भी इंटीजर रहना चाहिए। सेम वे से कस्टमर का एड्रेस और ईमेल आईडी भी मैप होगा एड्रेस और ईमेल आईडी जो कस्टमर टेबल है हमारा उसकी कॉलम के साथ। उसके बाद स्टेप नंबर 5 which is a connecting to the database we have already created।
सो अभी क्या करना है कि जो एप्लीकेशन हमने डिजाइन की उसमें जो पोजो क्लास लिया है उसको हमें डेटाबेस के साथ बाइंड करना है, ताकि जब हम रन करें तो ऑटोमेटिकली गेटर और सेटर मेथड वर्क करे। सो फॉर दैट सिलेक्ट अ सर्विस टेब विच इज अ लाइन नेक्स्ट टू द प्रोजेक्ट टेब। जो प्रोजेक्ट टेब है जो हमें लेफ्ट हैंड साइड में दिखेगा, उसमें एक टेब होगा सर्विस जिसमें जाना है, उसमें डेटाबेस को एक्सपांड करके हमें डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है। और जो चैप्टर नंबर 2 देखा था एट दैट टाइम हमने ये प्रैक्टिकल देखा था किस तरह से करना है। ठीक है, अभी क्या करना है कि एक बार एसक्यूएल डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो जाने के बाद हमें जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है एक्सएमएल फाइल ऑफ अ हाइबरनेट वो क्रिएट करने की, जो है hibernate.clg.xml। so which is need a configuration file. Hibernate can need a configuration file to create the connection. So for that what we will do, we will right click on a package which is our Hibernate test package। न्यू में जाएंगे, अदर में जाएंगे और अदर में उसमें एक ऑप्शन होगा हाइबरनेट और उसमें जाके हम कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड लेंगे। तो वो कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड लेने के बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और जब नेक्स्ट विंडो खुलेगी देन वी कैन क्लिक ऑन अ ड्रॉप डाउन मेनू एंड जो डेटाबेस कनेक्शन है और उसमें से हम रिटेलर डेटाबेस जो कनेक्शन है उसको सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद जो है वो कॉन्फ़िगरेशन एक्सएमएल फाइल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आप डेटा सोर्स देख सकते हो कि कौन सा डिटेल सोर्स लेना है। तो जो हमने यहाँ पे डेटाबेस कनेक्शन में आप देख सकते हो, ये जो रिटेलर नाम का जो डेटाबेस क्रिएट किया था उसको हम सिलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे एंड फिनिश पे लास्ट में क्लिक कर देंगे तो हमारा हाइबरनेट एप्लीकेशन और डेटाबेस के बीच में कनेक्टिविटी स्टैब्लिश हो जाएगी। और ये है कोडिंग ऑफ hibernate.cfg.xml फाइल की, जिसमें सबसे पहला टैग हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन, उसके अंदर एक सेशन फैक्ट्री ऑब्जेक्ट और उसमें हम सबसे पहले तो जो प्रॉपर्टी सबसे पहली सेट करेंगे वो है ड्राइवर सेट करेंगे। तो उसके लिए नेम इज इक्वल टू हाइबरनेट डॉट कनेक्शन डॉट ड्राइवर अंडरस्कोर क्लास और उसकी जो वैल्यू है वो कौन सी है, तो कि com डॉट माई एसक्यूएल डॉट जावा जेडीबीसी डॉट ड्राइवर। तो ये हमने स्पेसिफाई कर दी, सबसे पहले ड्राइवर का नेम स्पेसिफाई कर दिया, उसके बाद कनेक्शन यूआरएल को हमने स्पेसिफाई कर दिया और उसके लिए प्रॉपर्टी जो है वो टैग यूज होगा, राइट। तो सेशन जो है वो सेशन फैक्ट्री ऑब्जेक्ट के अंदर ये आपको टास्क परफॉर्म करना है। तो नेम है हाइबरनेट डॉट कनेक्शन डॉट यूआरएल और उसकी जो यूआरएल है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके अलावा यूजर नेम और पासवर्ड सेट कर दिया, यूजर नेम की वैल्यू है रूट, पासवर्ड की वैल्यू है रूट। और उसके बाद जो साइज है फुल साइज वो है 10, मीन्स अप टू द 10 फुल रिक्वेस्ट इट विल वर्क। एंड आफ्टर दैट वी कैन डू अ डायलेक्ट और उसके लिए हम माई एसक्यूएल डायलेक्ट का यूज करेंगे। हम इसमें अभी डिटेल में नहीं जाएंगे डायलेक्ट में, सिर्फ आप याद रखो। उसके अलावा जो सेशन कंटेक्स्ट क्लास है उसको सेट किया विच इज अ वैल्यू इज अ थ्रेड। उसके बाद अगर केस प्रोवाइडर का यूज करते हैं तो हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे, बट हम नहीं कर रहे हैं। तो फॉर दैट org.hibernate.case.no केस प्रोवाइडर, कोई भी केस प्रोवाइडर नहीं यूज कर रहे हैं। उसके अलावा एसक्यूएल दिखाना है तो कि यस शो द एसक्यूएल विच इज अ ट्रू। और उसके बाद अपडेट के लिए हमने यहाँ पे ऑटो अपडेट दे दिया है और उसके अलावा हम हाइबरनेट का जो hbm.xml है उसको भी हमने सिंपली मैप कर दिया और सेशन फैक्ट्री को क्लोज कर दिया और हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन क्लोज हो। तो ये हो गई हमारी हाइबरनेट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल। उसके बाद सेवंथ स्टेप की मैपिंग फाइल क्रिएट करनी है जिसका नाम है hibernate.hbm विच इज अ हाइबरनेट मैपिंग। जो हमने यहाँ पे मैपिंग नाम का जो टैग है उसमें उसका सोर्स दिया है कि जो मैपिंग के लिए वर्क करेगा। तो उसमें हम क्या करेंगे कि मैपिंग फाइल जो है विल द मैप द रिलेवेंट जावा ऑब्जेक्ट विद द रिलेवेंट डेटाबेस कॉलम। एंड सो फॉर डू दैट व्हाट वी विल डू, we can right click on a project, select a new into the other into the hibernate and we can select a hibernate mapping wizard। और उस मैपिंग विजार्ड में जाके हम एक
नेक्स्ट करके उसमें नेम स्पेसिफाई कर देंगे हाइबरनेट डॉट HBM, हाइबरनेट मैपिंग। और उसके बाद जाके हम क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट विंडो में हम सिलेक्ट करेंगे क्लास 2 मैप एंड अ डेटाबेस टेबल। और आफ्टर सिलेक्टिंग द करेक्ट क्लास एंड क्लिकिंग ऑन अ ओके बटन, द सिलेक्ट डेटाबेस टेबल, मैंने उसमें से हम क्लिक ड्रॉप डाउन लिस्ट करेंगे और उसमें से जिस टेबल से हम मैप करना चाहेंगे उसको हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये जो हाइबरनेट डॉट HBM डॉट XML टेबल है, जो क्लास है, राइट, मैपिंग की जो फाइल है वो उसका कोड जो है इस तरह से होगा। हाइबरनेट मैपिंग क्लास जो है वो हमारा कस्टमर, सॉरी, हाइबरनेट टेस्ट उसमें हमारा कस्टमर, और टेबल का नाम है कस्टमर। सबसे पहला कॉलम आईडी का रहेगा जिसका टाइप है इंटीजर और नेम है कस्टमर आईडी। जनरेट द क्लास विच इज अ नेटिव क्लास, एक जनरेट करेगा और आईडी सबसे पहले क्लोज करेगा। तो ये मैपिंग हो गया हमारा आईडी का। उसके बाद नेक्स्ट कस्टमर नेम, कॉलम का नेम जो है वो है नेम, कॉलम को क्लोज कर दिया, प्रॉपर्टी को क्लोज कर दिया। तो ये हमारा हो गया मैपिंग ऑफ कस्टमर नेम विद द कॉलम नेम नेम। सेम वे से कस्टमर एड्रेस और उसके बाद कस्टमर की ईमेल आईडी और फिर क्लास क्लोज, लास्ट में हाइबरनेट मैपिंग फाइल क्लोज। तो ये हो गई मैपिंग फाइल कि जो हमारे टेबल और जो वेरिएबल है उसको मैप करेगा। और उसके बाद हमें क्या करना है कि वी कैन क्रिएट अ मैपिंग फाइल जो हमने देखी, उसमें हम प्रॉपर्टी नेम इज इक्वल टू वेरिएबल नेम ऑफ अ पोजो क्लास एंड द कॉलम नेम इज इक्वल टू जो है उसमें हम क्या सेट करेंगे, तो कि डेटाबेस का जो कॉलम है जिसके साथ हमें मैप करना है वेरिएबल, उसको हम सेट करेंगे। और ये हो जाने के बाद जो 8th स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे, वी कैन इंसर्ट द रिकॉर्ड इनटू द डेटाबेस एंड सो फॉर दैट हम जो क्लास फाइल है हमारी उसमें टेस्ट में हम क्या करेंगे, उसकी मेन मेथड में एक सेशन ले लिया, ट्राई करेंगे सेशन फैक्ट्री ऑब्जेक्ट के साथ विच इज इक्वल टू द न्यू। अभी हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन को बिल्ड करेंगे और सेशन फैक्ट्री ऑब्जेक्ट को बिल्ड करेंगे। सो फॉर दैट org.hibernate.configuration फाइल डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट करके कन्फिग करेंगे, कन्फिग्योर द बिल्ड द सेशन ऑन अ फैक्ट्री, राइट। तो जो सेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा वो इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए एक सेशन बनाएगा। उसके बाद सेशन को हम ओपन करेंगे बाय यूजिंग अ सेशन इज इक्वल टू सेशन फैक्ट्री डॉट ओपन द सेशन एंड सेशन डॉट बिगिन इन अ ट्रांजेक्शन, जो जो है ट्रांजेक्शन को स्टार्ट करेगा। आफ्टर द स्टार्टिंग द ट्रांजेक्शन वी विल राइट पॉपुलेटिंग द डेटाबेस, डेटाबेस को सबसे पहले हम पॉपुलेट करेंगे। उसमें सबसे पहले जो हमारा कस्टमर जो टेबल है उसका एक ऑब्जेक्ट बना के हम उसको इनिशियलाइज करवा देंगे और उसमें सबसे पहले हम सेट करेंगे कस्टमर नेम और उसकी जो वैल्यू सेट करनी है वो। उसके बाद एड्रेस, यहाँ पे हम सेटर ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, इट मींस यहाँ पे हम इंसर्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें वैल्यू सेट करनी पड़ेगी। सो जो आपने पोजो क्लास में हमने जो गेटर और सेटर सेट किया था इसको हम यहाँ पे कॉल करवा रहे हैं। तो आप ईमेल आईडी और देख सकते हो और उसके बाद जैसे ही वैल्यू स्पेसिफाई कर दी हम क्या करेंगे, उसको सेव करेंगे कहाँ पे, तो कि कस्टमर नाम का जो हमारा टेबल है उसमें। उसके बाद ट्रांजेक्शन को कमिट कर देंगे ताकि वो सेव हो जाए और हम फाइनली मैसेज प्रिंट करवा देंगे डन। इट मीन्स कि डेटा जो है वो इंसर्ट हो चुका है। सेशन को प्लस कर देंगे ताकि वो नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए यूज हो सके। सेशन को क्लोज कर दिया और कैच ऑब्जेक्ट ले लिया एंड दिस इज द आउटपुट। सो पॉपुलेटिंग द डेटाबेस, हाइबरनेट इंसर्ट इनटू द कस्टमर, जो भी वैल्यू है वो आप यहाँ पे हाइबरनेट की क्वेरी देख सकते हो कि जो ऑटोमेटिकली हाइबरनेट ने जनरेट करके दी है और फाइनली डन आ गया। इट मींस द वैल्यू इज इंसर्टेड। तो इस तरह से हम हाइबरनेट का यूज कर सकते हैं। तो आज का सेशन हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं और यहाँ पे हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है वो होता है कंप्लीट। किसी को कोई भी डाउट हो देन यू कैन राइट ऑन अ मेंटर ग्रुप, राइट। एंड फ्रॉम द नेक्स्ट सेक्शन वी विल स्टार्ट आवर लास्ट चैप्टर ऑफ एडवांस जावा व्हिच इज स्प्रिंग और आर्किटेक्चर और फ्रेमवर्क, राइट। तो आज के सेशन को यही कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।